session. So, as you all know, that today's session is all about the interview part. That's why we have given you the resume form to fill it out. So, according to that form, we'll be asking some questions to know more about you as well as the best of you. And you all be going to judge by how you perfectly justify and define yourself. Now, coming to the second thing, while answering, you can use either Hindi or English as your full justification. मतलब या तो आप एकदम से हिंदी में आंसर दीजिए या एकदम से इंग्लिश में आंसर दीजिए, दोनों का मिक्स मैच होना मतलब नहीं होना चाहिए मिक्स मैच. ओके, सो चूज वाइजली कि आप कौन से लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और उसके हिसाब से आप अपने आप को जस्टिफाई करिए, अपने आप को डिफाइन करिए. ठीक है. बिफोर गोइंग फर्दर, we have your Gaurav sir and Ashish sir in the panel, and I would like Gaurav as well as Ashish to please introduce yourself and greet them. Okay, good morning, everyone. As you all know, already know, my name is Gaurav Sharma, Triple A sixth semester. एंड जैसे कि कांचन ने सबको बता दिया कि आज क्या होने वाला है सेशन में, तो आप लोग ट्राई करेंगे कि या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे पूरे सेशन में, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी ड्यू कांचन, वी शैल स्टार्ट. या तो कौन सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा हमारे स्कूल में? Anyone who wants to talk? मेरी आवाज आ रही है? हाँ गौरव, आ रही है आवाज. ठीक है, तो कितने लोग हैं? 21. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, एक सेकेंड. हाँ गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आयुष तंबुली है. मैं फर्स्ट सेमेस्टर ईटीएनटी ब्रांच से हूँ. आयुष. जस्ट अ सेकेंड, फॉर्म निकाल लेता हूँ. ठीक है, ठीक है आयुष. तो पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. इंटरव्यू में बैठे हैं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इंट्रोड्यूस करने के साथ में अपना नाम बताएंगे, अपना सेमेस्टर बताएंगे, अपना आपने स्कूलिंग कहाँ से की वो बताएंगे, आप रहते कहाँ है, आपका होम टाउन है क्या है वो बताएंगे, और अपने कुछ हॉबीज बताएंगे. समझ में आ ओके गया? सर. ओके सर. Sir, so first of all, my name is Ayush Tamboli. I am from the ET&T department, first semester. Or I complete my schooling from MGM Senior Secondary School, Sector 6, Bhilai, and I live in Bhilai, Radhika Nagar. And my favorite hobbies is playing a guitar, and I also like to play PC games, and I also love to cook in cooking. All right. So you want to you want this interview to be continued in English or Hindi? Sir, English. English. All right. So So I'm not that much comfortable with English, but I will try my best. that's good. All right. So as per your form, you like playing guitar and gaming. So guitar, have you played somewhere professionally, or you just play as a hobby? No, sir, I am beginner. No, right now I am beginner. I'm not that much. I play. I practice by online in lockdown. So All right. That's good. So That's good. and
Same goes with gaming as well, I believe. Yes, sir. Sir, gaming basically I will do from last 2 3 years. All right. So you said in your form you have written that your skill is drawing. So you are good at drawing? Sir, yeah, sketch. I draw a little bit, not that much. Sketching. Yes, sir. All right. So it's good. It's good. Your strengths you say is multitasking. Have you performed any sort of multitasking in any event or something which you can talk about, you can say about? Sir, no, sir. I basically I write multitasking because I think that I will do multiple things at a particular time. That's why I say I not participate in any events or anything else in All schools. right. And you said that your weakness is that I'm not able to communicate properly with others. Yes, Why sir. do you think so? Sir, because thought that in like I attend all the session before this, but I not comfortable that talk to all the in front of you. But this time I thought I overcome with that. That's why this session I talk. But you are talking to us right now, so that itself shows that you are now confident enough to talk to someone, especially your seniors. So that's a Yes, sir. good thing. But that my but I thought that is my weakness. All Sir, right. because So I see you from last all session. Don't mind. Excuse me. Nama ma'am, you'd like to say something? Yeah, I was asking him what made him change his mind. In last few sessions, he has not spoken a word. So why in this session? What is the motivation behind? Yes, Ayush. Yes, ma'am. This question was for you. Yes, ma'am. Can you repeat once again? What made you change your mind in this session and you spoke up? Ma'am, because I judge how the other talks to with the confident. Now I little bit confident that I also talk with all them. That's why I come with this session. And this is a basically interview session. So I thought this is a very good platform to speak. That's why, ma'am. Right. Okay. Before we continue, can Congratulations. yeah, Ayush, can you? Is it possible that you can turn on your video? If not, it is okay. But if you can, because it shows your confidence. Sir, right now I'm not able to do. All right, no problem. All right. So, so you're saying that you have attained certain improvement after attending this session. So I Yes, sir. believe it was the sessions are helpful for you, Yes, sir. is it? Very much. All right. So there are some if and buts with your speaking, but eventually you'll start improving, and they that problems will be overcome. Tell me about your. You said you certainly attended less percentage in 10th and good percentage in 12th. Why? Usually students work very hard and are quite serious about in 10th standard. So maximum time it is seen that a student in good percentage in 10th standard, but you did not. So what was the reason behind that? Sir, basically in class 10, I was a very in because I got in ninth, I got very good percentage. So I thought in class 10, all will say that class 10 is a easier than a class 9. So in class 10, I will not study that much, and that's why I not get that percentage. But when I get less percentage in class 10, then I thought this is not correct way to go with that. So that's why I take maths in CS in 11th, and I do work hard. So in class 12, I got that one. All right. So you realized that you did a mistake, hence you Yes, sir. improved in class 12th. Yes, sir. All right. So tell me something, Ayush. You're saying that corona cases are high. We are seeing a hike in every day.
So, but still, rallies are going on in states like West Bengal and Tamil Nadu. Do you think that our political leaders are not that much serious about COVID, or they're just interested in election? Sir, basically they are all are I from my side I thought that they only know they only do their elections. They doesn't care about what is a corona, and they only make their party to in a power, and the corona and all the cases. But basically I will say that they are only just for us, for the normal people. And the election and in the election they doesn't care about is what corona cases and other things matter. They only want to come in a power, so they go through all the elections. And All right. It was nice talking to you. You may turn off your mic. Yeah. yeah. Anyone else who wants to talk? Yes, sir. Yes, sir. Deepak. Okay, introduce yourself. सर मेरा I नाम am Khushi Jain. Deepak. Sorry, sir. Deepak, there. यस सर You want to speak in Hindi or English? हिंदी सर ठीक है. अपने बारे में बताइए हमको कुछ. यस सर आप सभी को सुप्रभात. मेरा नाम दीपक कुमार साहू है और मैं नरदहा रायपुर जिले से बिलोंग करता हूं और मैं जीसी में ट्रिपल ई ब्रांच 4th सेम का विद्यार्थी हूं. मैंने अपना स्कूल मैंने अपना 12वीं कक्षा ज्ञानराम वर्मा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरदहा से किया है 12वीं में 89% के साथ. और यदि बात करूं मैं अपने हॉबीज की, तो मेरे हॉबीज है प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और यूट्यूब वीडियोस बनाना. ठीक है. तो तुम्हारा कोई YouTube चैनल है? यस सर. किस टाइप की वीडियोस पोस्ट करते हो? सर उसमें मैं शॉर्ट स्टोरीज और कोट्स और पोएट्स कविताएं पोस्ट करता हूँ सर. अच्छा. ठीक है दीपक, एक सेकंड में तुम्हारा फॉर्म निकाल लो. दीपक कुमार ना? यस सर. ठीक है. तो हॉबीज क्या है तुम्हारी और यूट्यूब बनाने के अलावा? और है प्रेरणादायक किताबें पढ़ना सर. आखिरी सॉरी किताब कौन सर. सी पढ़ी थी? आखिरी किताब सर मैं जीत आपकी शिव खेड़ा सर का. कौन सी? जीत आपकी. क्या, किस चीज के बारे में किताब? सर उसमें शिव खेड़ा सर एक हम कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने दैनिक जीवन में भी कैसे हम खुश रह सकते हैं अपने नजरिए को चेंज करके, और कैसे हम सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सके, इस पर बताया है. उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे कहानी भी लिखे हैं जो यानी प्रेरणादायक कहानी है, शॉर्ट स्टोरीज. और सर मेरा जो YouTube वीडियोस का जो शॉर्ट स्टोरीज बोलने का जो आइडिया आया, मेरा इसी किताब को पढ़ने से आया है बेसिकली. आकांक्षा कुछ पूछना चाहोगी? फिलहाल अच्छा, तो अभी मतलब कितने सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे तुम्हारे अभी यूट्यूब चैनल में? मैम अभी 13 लोग हैं. 13 लोग हैं. तो मतलब यस. ऐसे कभी डीमोटिव नहीं होते कि बढ़ ही नहीं रहे? नो मैम, मैं एक्चुअली ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मेरे को सब्सक्राइबर न भी आए तो भी मुझे कुछ हो नहीं मैम, क्योंकि मुझे ये बनाने में ही अच्छा लगता है, स्टोरीज लिखने में ही अच्छा लगता है.
मुझे भी काफी सुन के अच्छा लगा। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है एक्चुअली। और सिर्फ मोटिवेशनली लिखते हो या फिर और भी तुम्हारा इसमें कुछ और इंटरेस्ट है पोएम लिखने में? मैम और तो कुछ इंटरेस्ट नहीं, मोटिवेशनल ही है मेरा। और आशीष। तो मैं दीपक आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो YouTube आप कर रहे हैं, ये आपका ऐसा पार्ट टाइम है कि आप इसको ऐसा प्रोफेशनल लेके जाना चाहेंगे? सर इसको मैं प्रोफेशनल नहीं कहूंगा, इसको मैं एक हॉबीज की तरह ले जा रहा हूँ। और प्रोफेशनल के लिए मैं एक और मतलब यूट्यूब बनाने का सोचा हूँ। उसमें कक्षा 6वीं से कक्षा 10 के बच्चों को गणित का विषय पढ़ाने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मतलब टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करना चाहूंगा। प्रोफेशनली मैं उसी को ले जाना चाहूंगा यूट्यूब के लिए। ठीक है। ठीक है। बहुत हाँ, दीपक, तुमने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है लर्निंग एटीट्यूड, स्मार्ट वर्किंग और लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? सर लीडरशिप का मतलब नेतृत्व क्षमता, जो अपने यानी सर किसी भी ग्रुप में अपने साथ अपने साथियों को भी लेकर के चलना और उसका नेतृत्व करना ही मेरे नजरिए में लीडरशिप है सर। ठीक है। और वीकनेसेस में लिखे हो कि तुम बहुत इमोशनल पर्सन हो, तो किस किस सेंस में इमोशनल हो? सर मतलब ये है कि यदि कोई मुझे इमोशनली यदि बेवकूफ बनाना चाहे तो मैं जल्दी ही बेवकूफ बन जाऊंगा। इसके लिए है सर। तो अगर तुमको इमोशनली कोई भी इजीली बेवकूफ बना सकता है, तो तुम तो किसी भी जॉब के लिए फिर तुमको सोचना पड़ेगा तुमको तुमको हायर करने के लिए, क्योंकि ऐसे में तो फिर तुम्हारे सबऑर्डिनेट तुमको बहुत इजीली ऐसे बेवकूफ बना के तुमसे काम निकलवा लेंगे। यस सर, इसी को मैं मतलब अपने इसी वीकनेस को सुधारने का मतलब वो कर रहा हूँ सर। कैसे सुधारोगे? प्रयास कर। कैसे सर सुधारोगे? इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हो सुधारने के लिए? कुछ कुछ मेजर्स कुछ सर अभी मतलब नहीं सर, ऐसे तो कुछ मेरे को मतलब नहीं सूझ रहा है कि क्या करना चाहिए अच्छे से उस पर। ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। महात्मा गांधी, हम सब जानते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, पर आपके हिसाब से आपकी पर्सनल सोच क्या है महात्मा गांधी को लेकर? सर महात्मा गांधी के ऊपर सर महात्मा गांधी बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत ही अच्छे आदमी भी थे। और मतलब वही है सर। और तो भारत की आजादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान था? बहुत बड़ा योगदान है सर। सबसे बड़ा योगदान क्या महात्मा गांधी का था या किसी और का भी था? सर सबसे बड़ा तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इसमें और भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और यदि उनको ही केवल यदि वो दिया जाए, यदि केवल उसका श्रेय यदि केवल महात्मा गांधी को दिया जाए तो मतलब मैं मानता हूँ कि वो उचित नहीं होगा, क्योंकि और भी स्वतंत्रता सेनानी है जैसे भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे हैं। और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सभी क्षेत्र सभी समुदाय के लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो उसमें सभी का योगदान है। लेकिन महात्मा गांधी जी। ठीक है दीपक, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कोई anyone else who wants to talk? Yes, sir. Thank Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait, Yes, sir. wait. Someone came with Monica. Yes, sir. In which language do you want to talk? Sir, Hindi. ठीक है। हमें अब बारे में कुछ बताइए। Sir,
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। तो मेरा नाम भी मोनिका है। मैं ETNT फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मैं अपनी 12th क्लास 12वीं कक्षा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से कंप्लीट किया है और मैं भिलाई वैशाली नगर में रहती हूँ और मेरी हॉबीज ड्राइंग और रीडिंग है। यस सर। तो रीडिंग तो लास्ट क्या कौन सी बुक पढ़ रहे हो अभी, कौन सी पढ़ रहे हो हाल फिलहाल में? अभी लाइफ इज व्हाट यू मेक इट पढ़ रही हूँ सर। अच्छा, लाइफ व्हाट यू मेक इट हिंदी में है कि इंग्लिश में? सर इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बुक पढ़ रहे हो पर इंटरव्यू के लिए हिंदी सेलेक्ट किए हो, ऐसा हिपोक्रेसी यस क्यों? सर। यस सर। सर बेसिकली मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ बट कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। अभी मैं लास्ट 3 मंथ से बुक पढ़ना चालू की हूँ और इंग्लिश में ही सब मूवीज और बाकी सब देखती हूँ ताकि थोड़ा कम्युनिकेशन मेरा जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि इंग्लिश बोलने में तुम इतनी सहज नहीं हो, ये बोलना चाहते हो? सर ऐसा नहीं बोल सकते। अगर सर बोल सकते हैं थोड़ा सा सर। समझ पूरा लेती हूँ। अगर किसी टॉपिक पे बोलना रहे तो अगर मेरे को 2-3 मिनट का टाइम दिया जाए तो मैं बोल भी लूंगी बट इंस्टेंटली क्लिक नहीं होता कि कौन सा वो कैब उस टाइम यूज होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आकांक्षा कुछ बोलना चाहोगे? माइक माइक ऑन करो आकांक्षा। सॉरी सॉरी सर, ड्राइंग के बारे में मैं पूछना पसंद करूंगी। तुम्हारा लाइक अभी कोई पर्टिकुलर स्टाइल है ड्राइंग को लेकर? मैम मैं पेंसिल शेडिंग करती हूँ और पेंट्स वगैरह ज्यादा नहीं करती, पेंसिल शेडिंग करती हूँ। और ओके। मैम मैं ऐसे कोई प्रोफेशनली नहीं हूँ। लॉकडाउन में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने यूट्यूब से देखकर समझकर फिर ट्राई किया था। अच्छा, ओके, थैंक यू। और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स वगैरह क्या है अगर मैं पूछना चाहूँ? हम्म, मैम अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को अगर मेरे को 10 से 15 मिनट दिया जाए तो मैं बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल हो जाती हूँ और किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली। ठीक है आशीष। हाँ, जैसा कि आपने लिखा है कि आपकी वीकनेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऐसा क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड होने को वीकनेस क्यों मानते हैं? सर मैंने देखा है कि कई लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पसंद नहीं आता। जैसे हम जो चीज उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगे और मैं उनको वो चीज बोल दूं। जैसे कई लोग मन में रख के बहुत दिनों तक पीठ पीछे तक बैक बाइटिंग करते हैं। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ तो वो लोगों को बुरा लग जाता है और वो आगे से मेरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बात नहीं करते, बातचीत बंद कर देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए शायद ये मेरे वीकनेस में आता है। नहीं तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनके मुंह पे उनके बारे में सही चीजें बोल रहे हैं, तो ये उनकी मतलब उनकी परेशानी है, आपकी परेशानी नहीं है। ओके सर। तो मतलब अगली बार से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगी? सर मैंने लास्ट 3 ईयर से ट्राई किया कि मतलब अपने आप को मतलब कंट्रोल करूं। मेरा शॉर्ट टेम्पर भी बहुत जल्दी हो जाता है कि मैं किसी पे भी बहुत जल्दी गुस्सा कर देती हूँ कि मतलब पंक्चुएट होना और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत जगह मेरे को नीचे गिराया है कि तो इसलिए ओके। मैं चाहती हूँ कि अपने इस चीज को मैं सुधार सकूं और लोगों को कम हर्ट कर सकूं। नामा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? No, that's all. ठीक है। मोनिका, मैं आपसे कुछ चीज आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे राम मंदिर बनने का आदेश आ गया है, तो अ, ठीक है, ये बहुत सारे
एक धर्म के लोगों के लिए एक धार्मिक मुद्दा है, उनसे उनके उनके इनके दिल से उनकी धर्म से जुड़ी हुई चीज है। पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि राम मंदिर बनने से क्या हमारी सर आपकी वॉइस समाज का विकास या आई देश का नहीं सर। विकास में कोई इसमें वृद्धि होगी? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि राम मंदिर क्या बनने सर से आपको ब्लिंक हो रही है आपकी वॉइस। हमारे समाज या देश के विकास में कोई वृद्धि होगी? गौरव, your voice is not बाकियों को clear. सुनाई दे रहा है? आशीष, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आवाज सर ब्लिंक मैं आपके कम आ रही है। क्वेश्चन को समझ गई हूँ सर, मैं आंसर करूँ? ठीक है, बोलो। यस सर। सर आपने कहा कि राम मंदिर बनने से कई लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे धर्म वाले हैं जो बनाना चाहते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये क्या हमारे समाज और देश के विकास में बढ़ावा देंगे? तो मैं ये सीधा कह सकती हूँ कि नहीं। ये बिल्कुल राम मंदिर बनने से एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बट अभी जो माहौल है 2-3 सालों में देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की कमी हो रही है, उनमें बेड्स की कमी हो रही है। और हमारे लिए एजुकेशन, हमारे देश को देखा जाए, अगर उसको विकास के राह में आगे बढ़ाया जाए तो हमें सबसे पहले एजुकेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और जो बहुत सारे ऐसे हमें कह सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे काम को ओपन करना पड़ेगा जो बहुत सारे लोगों को काम दे सके। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी कि बड़ा मंदिर बना देने से भगवान हमको बहुत सारा आशीर्वाद दे देगा। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि भगवान को अगर मन में रख के अगर पूजा भी किया जाए और सच्चे दिल से मानते हैं तो वो हमें बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। कोई भगवान नहीं कहता कि हम बहुत बड़ा मंदिर बना के दो, हमें भेंट चढ़ाओ, हमें प्रसाद चढ़ाओ। तो ये बिल्कुल गलत है। जो जितना छोटा मंदिर है उतना ठीक है, उसको बड़ा करके एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। उस पैसे को अच्छे काम में लगाना चाहिए। ठीक है मोनिका, बात करके अच्छा लगा आपसे। और कोई जो बात करना चाहेगा? थैंक यू सो यस मच सर। सर। नंद यस किशोर। सर। नंद किशोर, जी सर। इससे पहले कि हम बातचीत स्टार्ट करें, अपने आंसर्स को छोटा, इन विच लैंग्वेज डू यू वांट टू स्पीक? मैं हिंदी बात करना चाहूंगा सर। ठीक है, तो अपने आंसर्स को छोटा रखना क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर देना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस अपने बारे में बताइए हमको कुछ। सर मेरा नाम नंद किशोर साहू है। मैं जी से रायपुर में मैकेनिकल ब्रांच प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जेआरडी शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय दुर्ग से की है और मैं सिकोला बस्ती दुर्ग का निवासी हूँ। ठीक है, नंद किशोर अपनी हॉबीज के बारे में बताइए हमें कुछ। सर कविताएं लिखना, कबड्डी खेलना, ये सारी हॉबीज हैं और दूसरा अपनी कोई लिखी प्रेरणादायक हुई किताबें पढ़ना। जी अपनी कोई लिखी हुई कविता सुनिए। सर। उसकी एक पंक्ति सुनाता हूँ सर जो बहुत पसंद आया था। वो नारी के ऊपर था, नारी की जो दुर्दशा है आज हम देख रहे हैं, उस समय माहौल वैसी था। तो मैंने लिखा था कि त्रेता हो या द्वापर हो या तो कल युग ही हो, नारी को हर युग में सताया क्यों जाता है। इतने दुख सहती है कुछ नहीं कहती है, उनका बलिदान यूं भुलाया क्यों जाता है। और इसी कविता में मैंने कुछ कुछ दहेज और नारी उत्पीड़न आदि बहुत सारे विषयों पर लिखा था सर। जैसे दहेज पर मैं बोलूं, मुझे पंक्तियां याद नहीं आ रही है अभी, कोशिश करता हूँ। हाँ, घर की लक्ष्मी देने पर भी उसके बूढ़े बाप से धन लक्ष्मी दहेज में मांगा क्यों जाता है। इतने दुख सहती है कुछ नहीं कहती है, उनका बलिदान यूं भुलाया क्यों जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी थी सर। नारी के ऊपर था, नारियों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए ठीक समाज है, के जो। बहुत अच्छी। हाँ जी ठीक है, सर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी कविता थी, अच्छा लगा सुनकर। तो धन्यवाद। आप आपने अपनी कमियों में, मतलब कि वीकनेसेस में लिखा है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अगर आपको टेक्निकल चीजों में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था तो आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया?
नहीं सर, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, उसको मैं सीखना चाहता था। तो मुझे लगता है कि सीखने के लिए अगर मैं किसी तकनीकी क्षेत्र में जाऊं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने ये विषय चुना। और ये सब मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर, सापेक्षिक है, मतलब दूसरों की तुलना में कम है। मैंने जब यहाँ अध्ययन चालू किया जीसी रायपुर में, तो मुझे महसूस हुआ कि अभी जो मेरे एज के हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, उनकी तुलना में मेरा टेक्निकल नॉलेज कम है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और टेक्निकल में भी खासकर मैं कंप्यूटर इसमें शामिल करना चाहूँगा, कंप्यूटर का ज्ञान मुझे कम है, इसलिए ये भी एक ठीक है। विषय है। नामा मैम कुछ पूछना चाहेंगे? आप दुर्ग से हैं, तो जी मैम। दुर्ग की सबसे एक अच्छी चीज हमें बताइए। दुर्ग सबसे अच्छी चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं सर दुर्ग में, फिर भी चूंकि मैं थोड़ा देश से मुझे प्रेम है, तो मुझे लगता है शहीद पार्क जो यहाँ बना है वो बहुत अच्छा है, हमारे जिले में बना है, हालांकि भिलाई में है वो, लेकिन वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसलिए, क्योंकि सर देश प्रेम इससे जगता है। वैसे हम बहुत मंदिरों में खर्चा करते हैं और इधर उधर खर्च करते हैं, उससे अच्छा मुझे लगता है कि अगर हम पूरे देश को प्रेरित कर पाए किसी अपने रचना के माध्यम से, किसी बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट के माध्यम से, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। संक्षेप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है नंदकिशोर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कोई जी बात करना चाहता है? यस सर। नीलम, धन्यवाद सर। नीलम। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Which language? Sir, English. All right. Introduce yourself. Good morning, sir. I am Neelam Jaswal from ET&U branch. I am from Janakpur, Korea district. I have done my schooling from Korea district up to class 10, and I have done class 11th and 12th from St. Joseph Convent School, Bilaspur. All right. Tell us about your hobbies. Sir, my hobbies is basically to learn new things and cooking. All right. So what items do you cook? Sir, sir, I love to cook cake. Cake. Yes. All right. So you say your strength is time management, enthusiasm, and patience. Yes. So time management. Have you done any sort of time management event? You have taken part in any event? No, sir, I haven't did that much. Time management, I mean to say, I always done my assignment or all of my work on time. That much. All right. And you say your weakness is not good at communication, but trying to master it. So you are not good in communication. How so? Sir, I am not. I am weak to interact with people. That's why. So you are shy, or you are not confident enough to talk to others. Sir, I am not confident enough to talk with others. All right. So that is why you are attending this session. Yes, sir. And what impact these sessions made to your personality development? So this session was really very did very much impact. That's why I am trying to speak. All right. There are many speakers who usually, when you start speaking English, this problem arises. It comes with many of the speakers that you speak sir and sure. So always keep in mind, when you're speaking, you have to speak sir and sure, the difference. So try to speak sure, not sir. All right. Keep that in mind. Yes. That is a very general fault. It is not a big deal.
You can improve it very easily. All right. Akansha, you want to ask something? No. Ashish? No, no. Nama ma'am? No, we can move on now. All right. Thank you. Thank you, Neelam. Thank you very much. Anyone else wants to talk? Thank you, sir. Yes, sir, me. Neha, Gaurav, Akansha. Yes. Gaurav, sorry for the interruption. I think time is up. Yeah, we can do a last person. Neha was there. Just for 5 minutes, then we'll wrap it up. Good morning, sir. Okay. Good morning. Good morning, everyone. I am Neha Tiwari from Electronics and Telecommunication branch. I live in Raipur. I complete my schooling from Bharat Mata Higher Secondary School, Tatiban, Raipur only. All right, Neha. Yes, continue speaking. My hobbies are I love to dance. Means I am not good at dancing, but I love to dance. I love to draw. It makes me happy. I am not professional in drawing and dance, but I just love to. So I started. Even when I feel bad, I love to draw. I love to draw cartoon, basically means or God pictures. You wrote in your resume, your strength is my bad. What does that mean? Yes, sir. In your resume, in the column of your strengths, you have written my bad. What does that mean? My bad. Sir, I'm not getting what are you saying. You yourself have written. Your name is Neha, right? There is Yes, sir, only Neha one Neha Tiwari. in it. Yeah. Okay. So I don't know if you have written this or not, but all right, leave it. What you have written in your weakness? Sir, I have written I lack in socializing people. I lack in socializing with people. I mean, and confident problem, less confident. Okay. So you're less confident. Yes, sir. Why is it so? Why do you believe you're less confident? Uh, because, sir, I by my thought today ki I will speak in the session, but the session is about to end, so I thought I should speak because I thought everyone is good at speaking and I am not that much. All right, all right. So I got your resume. It was another Neha's resume. All right. Yes, sir. My strength is my flexibility to handle change, dedication, hard working, respectfulness, and honesty are all my strengths. Yes, Uh, sir. all right. It is good that you believe so. In what work do you believe your dedication is most? So in studies only means when I study the thing fully, but sir, I don't get the output as I have work hard for that almost all the time. Which is And your favorite subject? Yeah, Max. Nama ma'am? yeah, I was just asking what is the reason behind that? Do you know? You study hard, the results are not the same. Sir, ma'am, I think I just work hard and work on that hours and hours, but I means I don't move in a right direction, and most of the time it happens. In 12th class, it happened, and I don't get good results. Okay, so you mean you work hard but not Yes, ma'am. smart. That is the Yes, ma'am. problem. Yes, ma'am. Okay. I So used you're to doing anything about it?
Yes, ma'am. I'm trying to do things. Means when I started working, spending hours and hours on something, I stopped and thought, what should I do to make it in a less time? Or yes. Okay. Okay. Good. Okay, thank you, Neha. It was nice talking to you. All right, Thank you, so sir. we will wrap up the session Thank you, with sir. the last remarks. देखो, आप बहुत सारे लोग ने आज बोला, पर आप लोग पहले हेजिटेट करते हैं क्योंकि आप लोग पहले नहीं जाना चाहते। लाइफ में जो भी कभी भी ऐसे से या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बोलने के लिए, तो ट्राई टू गो फर्स्ट, बिकॉज जो पहले जाता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी का पड़ता है। वो इवेंचुअली आपको आएगा सेशन, अगले सेशन में जब भी ऐसा ओपन चांस आपको मिले बोलने के, तो ट्राई टू गो फर्स्ट। ठीक है, तो आप उससे इनविजिलेटर के ऊपर में आपका एक पड़ता है। मेरी आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। Yes, sir. मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंडे को इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमें हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में ट्राई करना है कि आप पहले बोले। ठीक है, हम ओपन सेशन रखेंगे, उसको भी जो बोलना चाहेगा हम उसको बोलने का मौका देंगे। ठीक है, आज के सेशन में जो आपको अच्छा लगा है या कुछ चीजें अगर बुरी लगी है तो आप फीडबैक फॉर्म में डालिएगा उसको, ताकि हमको पता चल सके हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, एंडिंग रिमार्क्स फ्रॉम नामा मैम। I would like to congratulate everyone. सब लोग ने बहुत अच्छा बोले और पिछली बार से पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था. So yeah, that's from my side. All right, thank you मैम। आकांक्षा? मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ और सबका एफर्ट भी अच्छे से, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू Thank फॉर you. इवन बीइंग अ मेंबर ऑफ थैंक यू मैम। एलओके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर Think today's anyone can session। hear. It's okay, it's okay. Thank you everyone for joining today's session and have a nice day. थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.